Hello friends, so today we are going live with this Why Not India and Krishna Engineering College uh, webinar, and we wanted to go live from Why India, uh, Why Not India web page, and today we are going with this IPR for Society Facebook live page, and we welcome you all. And this program is offered by Why Not India and Krishna Engineering Science, Krishna Engineering College, and this is for encouraging venture startups and venture youngsters to venture new idea and new innovations and new stuff for them. So basically, main idea is that today we are going through different kind of setup we have done. So we have collected some questions from the audience, and then we are today I am going to answer these questions to the audience. So we are going live on Why Not India web Facebook page, as well as many other 30-40 Facebook page. We are going live, and this program is running from last couple of 3 days. The 3 days this program started by Why Not India and Krishna Engineering College on 7th of July, and this program is specially for encouragement of the youngsters to start their own venture, and how and what kind of difficulties they are facing, and how they can proceed further. So title of the program is Start Your Own Venture. So start your own venture for college students, BTech students, MTech students, and who already cleared their graduation studies, how they can start up their new business or new innovative ideas and invention they have. And 7th and 8th, it was very good response we have received, and we shared many other speakers idea, and how one by one when the youngsters and persons can go through to start their own venture. So today main aspect is convert concentrated on intellectual property rights. So what is intellectual property rights? So before I go ahead and explain, and take consider the um, different questions and start answering those things, I would like to start this webinar with one story. So, एक स्टोरी जो है उससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों ने बचपन से एक स्टोरी सुनी है कि एक बंदर था और एक बंदरिया थी। वो एक जामुन के पेड़ पे रहते थे, और नदी के किनारे पे वो पेड़ पे बहुत मज़े से रहते थे। वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ थे, तो वो दोनों बंदर बंदरिया जो है वो फ्रूट्स खा के मज़े से रह रहे थे। तो ये जो कहानी है हमने बचपन से सुनी है और सब लोगों को पता होगा। तो इस कहानी में बचपन से हमको पता है कि ये कहानी आएगी बंदर बंदरिया की पेड़ पे, तो मगरमच्छ जरूर आएगा। मगर इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इस कहानी में कोई मगरमच्छ नहीं आ रहा है, मगर ये जो कहानी है, इस कहानी में हेलो यस तो इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है कि इस कहानी में बंदर बंदरिया आराम से मज़े से रहते हैं पेड़ पे और फ्रूट्स खा के रहते हैं। तो वो सोच रहे थे कि ये डार्विन जो है वो उन्होंने थियरी दी कि जो बंदर कुछ थे वो मनुष्य बन गए। तो बहुत सारे बंदर जो है प्रजाति के लोग हैं, मीन्स बंदर एनिमल्स जो है वो मनुष्य बन गए। तो बोला ऐसा क्यों हो गया, हम क्यों नहीं बने? तो वो दोनों सोचते थे कि ऐसा कैसे हो गया कि कुछ बंदर जो हमारे साथी थे वो सारे मनुष्य बन गए और हम अभी भी बंदर रह गए।
तो ऐसे जैसे ही इस बारे में सोच रहे थे, तभी अचानक से ऊपर से बिजलियाँ गरजने लगी। बिजलियाँ गरजी और आकाशवाणी हुई कि अगर आपको राजा या रानी बनना है तो जल्दी से नदी में कूद जाओ, जल्दी से नदी में कूद जाओ। अगर आप कूदोगे तो राजा या रानी बन जाओगे। तो जैसे ही आकाशवाणी हुई, बंदर सोचने लगा और बंदरिया ने बिना सोचे छलांग लगा दी। थोड़ी देर हुई तो बंदरिया नदी में से बाहर आई रानी बन के। रानी बन के अच्छे से आई तो उसने देखा बंदर तो अभी भी पेड़ पे बैठा हुआ है, तो गुस्से हो गई। बोलते तुमने क्या किया, तुम क्यों नहीं गिरे? तो बोला मैं तो सोचता रहा कि मैं क्या करूं। तो बोला मैं तो गिर गई और मैं रानी बन गई, देखो तुम सोचते रह गए। तो बंदर बोला मैं सोचता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर किसी के कहने पे अगर हम नदी में छलांग लगा दे तो कैसे राजा या रानी बन जाएंगे। तो मैं गिरा नहीं और सोचता रहा। तो बंदरिया बोलती है कि तुमने बहुत ही बेवकूफ़ी करी, अगर तुम गिर जाते तो राजा या रानी बन जाते, ऐसे तो तुम बंदर ही हो। अगर तुम गिर के कुछ नहीं बनते तो फिर बंदर ही रहते, तो तुमको कोई लॉस तो है नहीं। तो इससे अच्छा है कि तुमने रिस्क ले लिया होता और छलांग लगा दी। तो ये कहानी इसलिए है कि जो भी वेंचर करना चाह रहे हैं, उस वेंचर करने वाले पर्सन को कभी-कभी ऐसे डिसीजन या कभी-कभी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो बिना सोचे समझे आगे बढ़ने के लिए। मगर ये तो कहानी है, तो मैं एडवाइस दूंगा कि थोड़ा बहुत सोचो और आगे संभल के स्टेप लो। तो ये बात हो गई कि वेंचर के जिसको भी पर्सन को करना है उनको क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो आपने 2 दिन से बहुत कुछ सीखा समझा और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो आज जब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इस टॉक का आज मेन फॉर्मेट जो है वो इस तरह है कि मैं आपसे बातें करूंगा और जो भी हमने पिछले 5-6 दिन में क्वेश्चन रिसीव किए हैं वो क्वेश्चन को हमने समराइज किया है और उसके बेस पे मैं आंसर दूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है मैंने लिख रखे हैं एक प्रेजेंटेशन के, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन है वो लिस्ट डाउन कर रखे हैं। सो ये जो मेन क्वेश्चंस है इसको मैं आज कोशिश करूंगा कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर दूं। सो मेन क्वेश्चंस है रिलेटेड, टुडेज टॉक इज रिलेवेंट टू पेटेंट्स। सो बिफोर वी नो दैट व्हाट इज पेटेंट, वी मस्ट नो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो पेटेंट्स पता करने से पहले पेटेंट्स कैसे होता है, क्या होता है, पेटेंट क्या है वो जानना जरूरी है। और उससे भी पहले जरूरी है कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एक आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जो कोई भी पर्सन है, जो भी कोई भी क्रिएटर्स है, ऑनर्स है, उसकी जो टेंजिबल प्रॉपर्टीज है जैसे कि इन्वेंशंस, their artistic works, their creations, and their names or logos used in the commercial purpose for the trading, and some aspects are there related to copyrights and patents. So ये जो intellectual property rights है कि person who has created intangible property such as inventions, artistic works, names, logos they are using in the trading purpose. So whoever has their intellectual property, if they are protecting their intellectual property by rights, by filing a application with government office and government of any country's government, they are giving rights to that person. So that is called intellectual property rights. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो 7 से 8 टाइप के होते हैं, मगर जनरली जो मेन 3 राइट्स है उसको हम मानते हैं, डिस्कस करते हैं, एक ही पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स। सो उसमें से व्हाट इज पेटेंट? सो पेटेंट क्या है? सो पेटेंट जो है वो किसी भी इन्वेंशन के लिए मिल सकता है। वो इन्वेंशन के लिए
पेटेंट एप्लीकेशन जो क्रिएटर है, इन्वेंटर है, वो पेटेंट ऑफिस होती है हर एक कंट्री की, उसमें एप्लीकेशन फाइल करता है और जो गवर्नमेंट है वो उसके सामने उस पर्सन को कुछ राइट्स देती है कि दैट पर्सन कैन स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और importing the goods to that particular country. That means a patent is a right given by the government to the applicant or inventor to stop others from using, selling, manufacturing or offering for sale or importing the goods or services. So ये डेफिनेशन हुई पेटेंट्स की कि पेटेंट्स एप्लीकेंट या इन्वेंटर को गवर्नमेंट तब देती है कि जो पेटेंट या इन्वेंशन का डिस्क्लोजर वो करते हैं उसके सामने गवर्नमेंट उसको राइट देती है और उस राइट में वो राइट ऐसा है कि दूसरों को वो मैन्युफैक्चर करने से, यूज़ करने से, सेल करने से कि इंपोर्ट करने से रोक सकते हैं. So that is a definition of intellectual property rights and patent. So these are the main two things I have explained in very briefly. So what is patent or what is intellectual property rights? Then question is how to apply for it. So patent जो है उसको अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट सिंपल आंसर है कि हर एक कंट्रीज में पेटेंट ऑफिस होती है और उस कंट्री की पेटेंट ऑफिस में आप पेटेंट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो. आप मीन्स एप्लीकेंट और इन्वेंटर कैन अप्लाई फॉर ए पेटेंट एप्लीकेशन टू द पेटेंट ऑफिस. जैसे कि अगर हम आज बात करें इंडियन की, तो इंडिया में 4 पेटेंट ऑफिस है. मीन्स इंडियन पेटेंट ऑफिस जो है 4 जगह पे लोकेटेड है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई. सो इन चारों जगह के अलग अलग ऑफिस है, उसका जुरिस्डिक्शन अलग अलग है. जैसे कि हमारे दिल्ली में है, तो दिल्ली में नॉर्थ रीजन में जितने भी स्टेट्स आते हैं उनका जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो दिल्ली पेटेंट ऑफिस में फाइल होगा. इसका मतलब कि कोई भी एप्लीकेंट इन्वेंटर जो है वो नॉर्थ इंडिया रीजन में रहता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या जो नॉर्थ रीजन में आ रहा है उन सभी स्टेट में से कहीं भी अगर एप्लीकेंट रहता है, इन्वेंटर रहता है, तो उनको पेटेंट फाइल करना होगा दिल्ली पेटेंट ऑफिस में. ऐसे ही जो है वेस्टर्न रीजन में जो स्टेट्स हैं वहाँ बॉम्बे में फाइल करना होगा, सदर्न रीजन में जो है साउथ में उनको चेन्नई में, और ईस्टर्न रीजन में जो है उनको कलकत्ता में. सो आंसर टू द क्वेश्चन हाउ टू अप्लाई फॉर इट, I am just giving very briefly answer. First, that patent applicant or patent inventor, they have to prepare a patent application and they can file directly to the relevant or respective patent office. और दूसरी possibility क्या है कि you can hire a patent agent. So patent agent is the authority given by to the person who has qualified the Indian Patent Agent examination. That means that Indian Patent Office is conducting a examination for qualification of a patent agent. So whoever the person is qualified for as a patent agent, they can file a patent application on behalf of the applicant or a inventor. तो पेटेंट एजेंट जो है वो एक ऐसा गवर्नमेंट इंडियन पेटेंट ऑफिस देते हैं किसी पर्सन को जिसने वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है. तो आप अगर एप्लीकेंट या इन्वेंटर है तो आप पेटेंट एजेंट से बात कर सकते हैं और पेटेंट एजेंट कैन फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन टू द पेटेंट ऑफिस. सो ये है मेन दिस थिंग दैट हु कैन अप्लाई फॉर ए पेटेंट. देन क्वेश्चन इज वेयर टू अप्लाई फॉर इट. तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे नॉर्दर्न रीजन वाले को नॉर्दर्न दिल्ली में, सदर्न रीजन वाले को चेन्नई में.
तो ऐसे ही फाइल करना है। और उसके आगे अगर हम बताऊं मैं कि जो पेटेंट है वो टेरिटोरियल राइट है। टेरिटोरियल राइट क्या होता है कि अगर आपको जो पेटेंट है, आपका इन्वेंशन को आपको प्रैक्टिस करना है इंडिया में, तो आपको इंडिया में पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है तो वहाँ आपको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो ये मैंने ब्रीफली बताया कि हाउ टू अप्लाई फॉर इट एंड वेयर टू अप्लाई फॉर इट। और पेटेंट जो है वो एप्लीकेशन वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको देना होता है। जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि उसके पेटेंट एप्लीकेशन जो है उसमें मेन जो 5-6 सेक्शंस है उसमें फॉर्मेट में लिख के देना होता है, तो उसको बोलते हैं पेटेंट ड्राफ्टिंग। तो पेटेंट ड्राफ्टिंग जो है थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज पेटेंट एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड एज ए टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट। Techno-legal document, the word itself suggests that it is related to technical as well as legal. So this is techno-legal document. So one has to be very careful while preparing a patent application. So जिसको भी पेटेंट एप्लीकेशन बनाना है तो इंडियन पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट से बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, या तो आप पेटेंट एजेंट को हायर कर सकते हैं जो आपको पेटेंट एप्लीकेशन कौन से फॉर्मेट में होगी वो बताएंगे। उसके मेन सेक्शंस होते हैं टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, फील्ड ऑफ द इन्वेंशन, background of the invention, summary of the invention, detailed description of the invention, and claims. And if there is mechanicals or some other relevant drawings also you can put it. तो ये मेन चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें एक वर्ड है क्लेम। क्लेम क्या होता है कि क्लेम जो है वो हार्ट ऑफ द पेटेंट वी कॉल इट, हार्ट ऑफ ए पेटेंट एप्लीकेशन और हार्ट ऑफ ए इन्वेंशन। जो क्लेम्स है वो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे आपका कोई लैंड है, वो लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक बाउंड्री बनाते हैं। वो बाउंड्री के बनाने के बाद आप बोलते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर जो लैंड है वो मेरा हो गया। तो क्लेम जो है वो उसी तरह से पेटेंट एप्लीकेशन या इन्वेंशन के लिए है कि जो भी आप क्लेम्स में आप लिखोगे वो इन्वेंशन आपका प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तो वेरी ब्रीफली टू कट शॉर्ट, पेटेंट एप्लीकेशन जो है उसको पेटेंट ड्राफ्टिंग बनाने का जो बोलते हैं उसको पेटेंट ड्राफ्टिंग बोलते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत एक्सपर्ट के साथ मिलके करना अच्छा होता है। तो वो होता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर इट पेटेंट। फिर हाउ टू अप्लाई इट फॉर पेटेंट जैसे मैंने बता दिया कि आप खुद भी कर सकते हैं और पेटेंट एजेंट की हेल्प भी ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज पेटेंट प्रोसेसिंग। तो पेटेंट प्रोसेसिंग क्या होता है? तो पेटेंट प्रोसेसिंग जो है वो very briefly and some details I am giving that how one can go through this patent। तो पेटेंट प्रोसेसिंग क्या होता है? पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो आप पेटेंट ऑफिस में फाइल करते हैं। फिर क्या होता है कि जो पेटेंट एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं वो पेटेंट एप्लीकेशन को पेटेंट ऑफिस जो है वो ग्रांट करता है। जब तक वो ग्रांट नहीं करेगा तब तक आपका इन्वेंशन या पेटेंट जो एप्लीकेशन आपने फाइल किए हैं वो मान्य नहीं होगी। अनटिल अनलेस यू गेट द ग्रांट ऑफ योर फाइल्ड पेटेंट एप्लीकेशन you cannot use as a patent. So remember, patent application filing is different and granting is different. जो भी पेटेंट एप्लीकेशन है वो सारी पेटेंट एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस में फाइल होती है। फिर पेटेंट ऑफिस में होता है कि वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो एक्सपर्ट्स को बोलते हैं एग्जामिनर और कंट्रोलर। Let's say your invention is related to mechanical engineering, then there are mechanical engineer or mechanical experts are there in the patent office. They will examine your patent application whether they can give a grant to your patent application or not. Let's say your invention is related to electronics or computer science, so controller or examiner who is sitting at the patent office, they will examine your patent application and then they will grant or they will reject your patent application. तो अब है कि जो whoever is sitting there, controller or examiner,
how they decide, that whether your application is grantable or not. So उसके लिए क्राइटेरियाज होते हैं, पेटेंट लॉज जो होता है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वो बोलते हैं, वो पेटेंट एक्ट के अंदर चीज़ें डिफाइन है कि कौन से इन्वेंशन को हमको पेटेंट ग्रांट करना है, कौन से इन्वेंशन को ग्रांट नहीं करना है। मगर जनरल टर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसमें एक नियम है, नन्स रूल, रिमेंबर दैट, NUNS. What is that? NUNS, Nuns rule. That is, Nuns rules is applied for checking whether your invention is patentable or not. So what is NUNS? First N stands for novelty. So that means that your invention must be a novel. इसका मतलब क्या है कि नॉवेल्टी क्या होती है कि आपका जो इन्वेंशन आप फाइल कर रहे हो वो कभी भी कहीं भी दुनिया में पब्लिश नहीं होना चाहिए। That means that your invention must be very new one and no one knows before you filed a patent application. Second is utility. That means that industrial applicability we call it in India. उसका मतलब कि वो जो है कुछ न कुछ काम का होना चाहिए, कुछ न कुछ उसमें से टेक्निकल चीज़ काम की होनी चाहिए और उससे समाज को या कंट्री को फ़ायदा होना चाहिए। दैट मीन्स यूटिलिटी मस्ट बी देयर। Then is non-obviousness. Non-obviousness is inventive step, we call it in India. So inventive step क्या होता है कि कोई भी दो इन्वेंशन है, इन्वेंशन ए एंड इन्वेंशन बी, तो अगर आपको पता है इन्वेंशन ए एंड बी, आप जस्ट कंबाइन करके बोलते हो ये मेरा इन्वेंशन है नया, तो भी पेटेंट ऑफिस आपको पेटेंट नहीं देगी। लेट्स से you have one umbrella and you have one fan. So if you put fan on umbrella, that means that you said that okay, I have my new invention, कि जिसमें फैन के साथ अम्ब्रेला के साथ फैन है। तो अम्ब्रेला के साथ फैन है वो तो दोनों चीज़ें पता है कि अम्ब्रेला भी पता है और फैन भी पता है। दैट मीन्स दैट योर इन्वेंशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए obvious. It will consider as a obvious, it won't consider as a non obvious. तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। और होता है एस, एस स्टैंड्स फॉर स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स। हर एक कंट्री जो है उसमें कुछ इन्वेंशन देते हैं और कुछ टाइप के इन्वेंशन नहीं देते हैं। तो इंडिया में भी हमारे यहाँ भी सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट इज देयर, वेयर इट इज डिफाइंड दैट व्हाट आर द इन्वेंशंस आर नॉट पेटेंटेबल। सो जो भी इन्वेंशन है वो अगर नहीं पेटेंटेबल है सब्जेक्ट मैटर में, तो एग्जामिनर और कंट्रोलर आपको ग्रांट नहीं देगा। लेट्स से द कंट्रोलर एंड examiner, they examines your patent application and then they will send out the first examination report. We call it FER. So they generate the FER and then they send it first examination report to the applicant and then applicant go through that one. So then you must be wondering what is there in first examination report. First examination report में जो एग्जामिनर और कंट्रोलर ने आपकी पेटेंट एप्लीकेशन एग्जामिन करी है उसके बारे में लिखते हैं कि आपका इन्वेंशन पेटेंटेबल है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सब डिटेल होती है और उसमें ऑब्जेक्शंस रेज किए होते हैं। तो उस ऑब्जेक्शंस को आपको जवाब देना होता है। देन यू हैव टू फाइल ए response to the FER. Then you clarified that these are the objections you have raised and we are giving answer to your objections. After that, controller examiner again go through that response to the FER whatever you have filed and then they will again look at the matter and then they will decide whether your invention is patentable or not. At that time if they think okay you have answered to all the objections, then they will grant a patent to your patent application. If that time also they are not considered that your invention is patentable, then they will ask you to appear for hearing. Hearing means they will ask you to appear for physical presence or nowadays it's video conferencing. So you have to present to the controller and then you have to give your explanation and answers via video conferencing or visiting patent office physically.
After that, controller, if he thinks or she thinks that your invention is patentable, then he or she will grant you a patent. So ये जो है मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो है पेटेंट प्रोसेसिंग इन इंडिया. Very briefly, I have explained that what is patent processing in India. So these are the steps are there. Then the question is, how long does a patent remains active? पेटेंट कब तक एक्टिव रहती है? तो उस क्वेश्चन का आंसर है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, all the countries, they have agreed and they have signed a treaty called WIPO is the one of the organization who works under UNO, and under this WIPO organization, 195 countries have signed the treaty, and they all are agreed that there are certain set of rules and acts are there they have to follow. So under this one, it is very clearly said that all the countries, they will grant a patent for a patent application for 20 years. 20 years means 20 साल के लिए आपको राइट मिलेगा पेटेंट का, और वो पेटेंट का राइट आपको मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग डेट. तो जिस दिन आपने जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है उस दिन से आपको 20 इयर्स का राइट मिलेगा. अगर आपको, जैसे मैंने पेटेंट प्रोसेसिंग में बताया कि अगर कंट्रोलर और एग्जामिनर जो पेटेंट ऑफिस के हैं, अगर आपको ग्रांट देते हैं आपका इन्वेंशन को, तब वो जो पेटेंट ग्रांटेड पेटेंट है उसका आपका राइट मिलेगा 20 इयर्स के लिए. सो टू आंसर द क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज ए पेटेंट रिमेन्स एक्टिव, answer is 20 years. So term of a patent is 20 years. Now there is a question, are there different types of patents? Yes, there are different type of patents, or we call it different types of patent applications. इंडिया में अगर मैं आज एक्सप्लेन करूँ today's term, if I explain for in context of India, then there are 4 to 5 different types of patent applications are there. So first type is the provisional patent application. What is provisional patent application? Provisional patent application is that once you have idea and once you have worked out your invention, you have conducted some preliminary experiments, and then you have to file a patent application as a provisional patent application to the patent office. ये क्यों होता है कि जिस दिन आप पेटेंट प्रोविजनल पेटेंट फाइल करते हो तो आपकी प्रायोरिटी डेट सिक्योर हो जाती है. प्रायोरिटी डेट क्या होती है मैं एक्सप्लेन करूँगा वेरी ब्रीफली. कि जैसे मेरे पास एक इन्वेंशन है आज, और आज मेरे पास आइडिया आया कि मेरे को ये पेन जो है वो बनाने का नया आइडिया है. तो इस पेन का जो टिप है या इस पेन का जो डिज़ाइन है और इसके अंदर जो इंक पेन है उसके ऊपर मुझे आइडिया है कि ये पेन है, उसका मेरा इन्वेंशन है. उसको अभी मैंने पूरा काम नहीं किया है, मगर मुझे इस पर पेटेंट लेना है. तो मैं अगर आज की डेट में फाइल कर दूँ पेटेंट एप्लीकेशन, प्रोविजनल पेटेंट आज की डेट में फाइल कर दूँ, तो मेरी प्रायोरिटी डेट सिक्योर हो जाएगी. जैसे टुमारो you are there in some other country, some other states in India, and you also get the same idea. Then you go to the patent office and you want to file a patent application. They will say, okay, you file a patent application, but they will later on find out that I have filed a provisional patent application one day before you, so I have right over this invention before you. So आपको आपका इन्वेंशन का पेटेंट नहीं मिल सकता है, जबकि मैंने प्रोविजनल पेटेंट आज फाइल किए तो मुझे अपने पेटेंट एप्लीकेशन का राइट मिल सकता है. तो ये हुआ प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन. मगर ये जो है सिर्फ एज ए एग्जांपल अभी मैंने बताया. प्रोविजनल पेटेंट क्या होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट्स जस्ट किए हैं प्रीलिमिनरी, और आपको लगता है कि आपका इन्वेंशन फाइल करना है, तो प्रायोरिटी डेट सिक्योर करने के लिए आप प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. उसके बाद क्या होता है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन.
complete patent application. You have to file within 12 months from the date of provisional patent application. आपको जो पेटेंट ग्रांट मिलेगी वो तभी मिलेगी जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन या कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करोगे। प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन है, प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। आपको कंप्लीट फाइल करोगे, पूरे एक्सपेरिमेंट सारे लिख के करके फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल डिस्क्रिप्शन दोगे और पेटेंट ऑफिस में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करोगे, उसी को आपको ग्रांट मिलेगा। प्रोविजनल के लिए आपको ग्रांट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया एक टाइप। फर्स्ट टाइप इज प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन। सेकंड वी कॉल इट ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन कौन सी होती है कि जो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो, उसके पहले आपने कोई और एप्लीकेशन नहीं फाइल की है और आप पहली एप्लीकेशन जो फाइल करते हो इंडिया में, तो इंडिया में जो फर्स्ट एप्लीकेशन आप फाइल करते हो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन या ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। सो ये एक टाइप हो गया। देन नेक्स्ट टाइप इज दैट PCT नेशनल फेज एंट्री। सो PCT जो है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ हियर इन डिटेल अबाउट व्हाट इज PCT, बट as of now you remember that there is one patent application, international patent application, we call it as a PCT application. So if any PCT application is there and they have designated India as a country and that application comes to the India, means that application they are sending to the Indian Patent Office, that application call it PCT national phase entry. That means that PCT एप्लीकेशन जो है वो नेशनल फेज है, उसके थ्रू इंडिया में आई है। दैट मीन्स दैट PCT नेशनल फेज एप्लीकेशन। और दूसरा होता है कन्वेंशन एप्लीकेशन। ये कौन सा टाइप है? कन्वेंशन एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि अंडर द वाइपो ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ पेटेंट ट्रीटी इज देयर, सो अराउंड 180-190 कंट्री हैव साइंड दिस वन। सो जो भी कंट्रीज ने साइन की है उसको बोलते हैं कन्वेंशन कंट्रीज। सो ये जो कन्वेंशन कंट्रीज में किसी ने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी है और वो पेटेंट एप्लीकेशन वो इंडिया में फाइल करता है इंडिया में प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि पेटेंट इज ए टेरिटोरियल राइट। दैट मीन्स दैट पेटेंट अगर इंडिया में इंडिया पेटेंट फाइल किया है तो इंडिया का ही राइट है। अगर आपने पेटेंट चाइना में फाइल किया तो चाइना का ही राइट है। अगर आपने यूरोप में कहीं फाइल किया तो वो पर्टिकुलर कंट्री का राइट है। तो जैसे आप इन्वेंटर है, लेट्स से यू आर इन्वेंटर इन बांग्लादेश, you have filed a patent application first in Bangladesh. Afterwards, you are coming to India and you also wanted to protect your invention in India. That means that you are also filing the same patent application in India, saying that I am the inventor from Bangladesh. I want to file a patent application in India. तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन। दैट मीन्स दैट बांग्लादेश जो है वो कन्वेंशन कंट्री है, उसकी एप्लीकेशन कोई है वो इंडिया में फाइल होती है, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन। नाउ देयर आर टू मोर टाइप्स आर देयर। पेटेंट ऑफ एडिशन। So patent of addition is what? Let's say you have invention today and you have filed a patent application today, and then you are still working on your invention, and then after filing a patent application, after grant of your patent application also, you think that you require to modify something in your invention and you have new, means some improvement in your invention. So afterwards you also wanted to protect, that whatever improvement you have done in your invention. In that case you file a second application that mentioning that you have already filed a patent application earlier, let's say patent application A, and this is my improvement of the invention, I am filing this as a patent of addition. उसका मतलब है कि जो आपने पहले एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, तो आपको सेकंड इन्वेंशन के लिए भी पेटेंट फाइल करना है, तो उसको बोलते हैं पेटेंट ऑफ एडिशन। दैट मीन्स दैट
you have added something new to that your invention, उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको राइट सिक्योर करना है, तो आप उसके लिए फाइल करेंगे पेटेंट ऑफ एडिशन. देयर इज ऑल्सो डिविजनल पेटेंट एप्लीकेशन. व्हाट इज डिविजनल एप्लीकेशन? लेट्स से एज आई सेड दैट आई हैव इन्वेंशन फॉर दिस पेन. तो जो पेन है उसके ऊपर मेरा इन्वेंशन है, पेन एज ए प्रोडक्ट. तो पेन प्रोडक्ट हो गया कि जिसके नीब वगैरह जो है ये जो है, और इसके अंदर रिफिल कौन सी होगी वो सब आ गया इन्वेंशन. तो ये जो है पेन के ऊपर इन्वेंशन हो गया. उसके बाद हो गया मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन. अगर ये पेन किस तरह से मैं बनाता हूँ उसका प्रोसेस भी मेरे पास नया है, तो उसके लिए जो इन्वेंशन है वो दूसरा इन्वेंशन हो गया. तो उसका मतलब है कि एक मेथड हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया. तो एक प्रोसेस और एक प्रोडक्ट. तो अगर आपका इन्वेंशन जो है उसमें आपको दोनों को प्रोटेक्शन करना है, मेथड एज वेल एज प्रोडक्ट, in that case you have to file two different patent application. That is called divisional patent application. कि एक इन्वेंशन है उसमें दो चीजें कवर्ड है, मेथड और दूसरे में इन्वेंशन प्रोडक्ट या डिवाइस एपरेटस एटसेट्रा. तो ये हो गए कि जो भी आपका इन्वेंशन है उसमें मल्टीपल इन्वेंशन कवर्ड है, तो उसके लिए आपको डिविजनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी है. दैट मीन्स दैट अलग अलग आपको पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. सो दिस ब्रिंग टू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन दैट आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटेंट. यस, देयर आर different type of patent application or patents are there. What are these? Just to summarize it, there is provisional patent application, then there is ordinary application, then convention application, then PCT national phase invention, then patent of addition, and then divisional application. So ये सब जो है different type of patents या different type of patent applications. Then how much does it cost? जो cost है वो बहुत ही वेरी करता है. That means that अगर आप वेरी इसलिए करता है कि पेटेंट एजेंट जो है उसको आप हायर करते हो, वो कुछ चार्ज लेते हैं, या पेटेंट प्रोफेशनल जो हायर करते हैं वो चार्ज लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट. मगर जो है अगर आपको सीधे से आंसर चाहिए कि पेटेंट ऑफिस जो फीस लेती है वो कितनी है, तो वो सबके लिए होगा. इसमें जो है 3 कैटेगरी है इंडिया में 3 कैटेगरी के लोग हैं. मीन्स 3 टाइप ऑफ एप्लीकेंट्स आर कंसिडर इन इंडिया. फर्स्ट इज दैट नेचुरल पर्सन और स्टार्टअप्स. सो whoever is natural person, individual inventor or applicant, they call it natural persons और startups. उसके लिए फीस अलग है. देन सेकंड कैटेगरी स्मॉल एंटिटी. स्मॉल एंटिटी मीन्स जो स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल से अलग है, जिसकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है, जैसे MSME आर देयर. सो ऑल दीज कंपनीज, स्मॉल कंपनीज आर देयर, दे कंसिडर एज ए स्मॉल एंटिटी. Then there is a other than big companies etc. are there. Your universities are there. So big companies or big universities are there. They are having huge number of people and their income is also more. So they are considered as a other than natural persons or small entity or startups. So ये 3 categories है. एक है natural person startups, second is for small entity or small business people, and third is large entity or large business. So इनकी फीस अलग अलग क्या क्या है. जैसे कि फाइलिंग फीस होती है. लेट्स से फर्स्ट व्हाट आर द फीस आर देयर. देयर आर 3 मेन फीस आर देयर. वन इज फाइलिंग फीस and second is request for examination fees. So 2 fees है, फाइलिंग फीस और रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फीस. उसमें क्या होता है कि जो इन्वेंटर है अगर नेचुरल पर्सन है तो उसकी एप्लीकेशन की फाइलिंग फीस होगी 1600 रुपीज़. नोट डाउन इफ यू आर राइटिंग, 1600 रुपीज़ फीस विल बी देयर फॉर द नेचुरल पर्सन और स्टार्टअप्स. और ये जो फीस है
वो लिमिटेड होती है। फर्स्ट फाइलिंग फीस जो है वो लिमिटेड होती है 30 पेजेस और मैक्सिमम 10 क्लेम्स। अगर उससे ज़्यादा आपके क्लेम्स या नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा है तो फीस बढ़ जाती है। मगर 30 पेज से कम है और 10 क्लेम से कम है तो आपकी फ़ीस होगी नेचुरल पर्सन की 1600 रुपीज़। अगर आपकी बिग कंपनीज हैं तो आपकी फ़ीस होगी 8000 रुपीज़। अगर आपकी स्मॉल एंटिटीज़ या स्मॉल कंपनीज एमएसएमई कंपनीज आते हैं तब आपकी फ़ीस होगी 4000 रुपीज़। सो फाइलिंग फ़ीस होती है 3 अकॉर्डिंग टू 3 टाइप ऑफ एप्लीकेंट, 1600, 4000 एंड 8000। ये हो गई फाइलिंग फीस। दूसरी होती है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फीस। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फीस होती है 4000 फॉर द नेचुरल पर्सन और स्टार्टअप। देन होती है 20,000 फॉर लार्जर कंपनीज और बिग कंपनीज। देन है 10,000 फॉर एमएसएमई और स्मॉल एंटिटीज। सो ये है 3 टाइप ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। हाँ, ये भी एक स्टेप था तो पेटेंट प्रोसेसिंग में रह गया कि पेटेंट एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस उसका एग्जामिनेशन शुरू नहीं करता है। उसके पहले वो पेटेंट ऑफिस जो है पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिश करता है और वो पब्लिश होने के बाद एप्लीकेंट को रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करनी होती है। उसके बाद ही एग्जामिनेशन शुरू होता है। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अगर आप नहीं फाइल करोगे तो आपकी पेटेंट एप्लीकेशन एज इट इज़ पड़ी रहेगी या एज इट इज़ पब्लिश होकर रहेगी। पेटेंट ऑफिस उस पर ग्रांट या एग्जामिनेशन शुरू नहीं करेगा। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइलिंग जो है इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडिया में पेटेंट प्रोसेसिंग में। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको फीस भी पे करनी है। फीस कितनी होगी? 4000 रुपीज़ फॉर नेचुरल पर्सन, 20,000 rupees for small companies, big companies, and 10,000 rupees for small entities. तो ये जो फीस है वो आपको देनी है। तो इन जनरल कॉस्ट जो है सिंपल लैंग्वेज में नेचुरल पर्सन और स्टार्टअप्स के लिए आती है 1600 प्लस 4000 मीन दैट मीन्स 5600 एंड फॉर big companies that comes 8,000 प्लस 20,000 28,000। तो ऐसे जो फीस है ये मेन फीस है कि आपको ये फीस पे करोगे तो होगा। और उसके अलावा जो है अगर आप पेटेंट एजेंट या पेटेंट एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं तो वो आपको पेटेंट ड्राफ्टिंग में हेल्प करते हैं, आपकी ऑनलाइन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। तो उन सब पेटेंट प्रोसिक्यूशन जो बोलते हैं, पेटेंट ऑफिस के साथ जो भी कम्युनिकेशन है उसको जो पेटेंट एक्सपर्ट है वो he is taking care of your all the patent prosecution step and communication with the patent office. So every patent office expert they will charge differently. But in general, if I want to share today with you all, it varies from 15,000 to 1 lakh 2 lakh rupees. So it depends upon who you are hiring for filing your patent application and prosecution of your patent application. सो ये जो है आंसर इन शॉर्ट में दे रहे हैं व्हाट हाउ मच डज इट कॉस्ट। देन देयर इज अ क्वेश्चन इज हाउ टू नो इफ देयर इजंट ए पेटेंट फॉर ए पर्टिकुलर आइडिया ऑलरेडी। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पेटेंट एप्लीकेशन जो आप फाइल करते हो उसको ग्रांट में मिलेगा। कौन सा रूल्स था? नन्स रूल, novelty, utility, non-obviousness and statutory requirement। तो नोवेल्टी प्रूव करने के लिए होता है कि आपकी पेटेंट एप्लीकेशन जो इन्वेंशन आपने फाइल किया है ऐसे वाला इन्वेंशन कभी भी किसी ने पब्लिश नहीं किया हो, तो उसको बोलते हैं नोवेल्टी। तो उसके लिए जो है ये जो है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जैसा इन्वेंशन पहले था कि नहीं था। तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट सर्चिंग या प्रायर आर्ट सर्चिंग। प्रायर आर्ट सर्चिंग जो है वो एक आर्ट है। आपको जो है वो सीखना पड़ेगा कि किस तरह से कहाँ से आपको जो फाइल्ड पेटेंट पब्लिश पेटेंट है या पब्लिश पेटेंट एप्लीकेशन है या कोई लिटरेचर्स है, रिसर्च आर्टिकल्स या जो भी पब्लिश्ड है वो कहाँ कहाँ किस तरह से सर्च करना चाहिए। एक तो होता है patents.google.com पे सर्च करो,
दूसरा होता है हर एक पेटेंट ऑफिस जो है उनकी वेबसाइट्स होती है, उनका अपना डेटाबेस होता है, उनका सर्च इंजन होता है, वहाँ भी जाके आप सर्च कर सकते हो। तो इन ए शॉर्ट आई कॉल इट ए पेटेंट सर्चिंग। सो पेटेंट सर्चिंग आपको करना आना चाहिए और आपको सीखना चाहिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल इनटू दिस, but I have some news about this. I'm going to share once this webinar is ends. So I'm going to share very soon about this patent searching. Then there is a question is that how does it protect against the duplication of the idea? जैसे कि मैंने पेटेंट का डेफिनेशन में बताया था कि ये जो आपकी पेटेंट है, अगर आपकी पेटेंट ग्रांट मिल जाती है तो आप दूसरे को सेम इन्वेंशन जो है उसको यूजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ऑफरिंग फॉर सेल और इंपोर्टिंग से रोक सकते हो। तो ये एक तरीका हुआ, और भी कुछ और तरीके हैं, तो उसके लिए अभी टाइम नहीं है डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए। मगर जो है आपका जो प्रोटेक्शन है, आपको पेटेंट इस तरह से ड्राफ्ट करनी चाहिए, जैसे मैंने बोला था ना कि पेटेंट एप्लीकेशन जो है उसका हार्ट क्या है? क्लेम्स। Claims is a heart of patent application. As I compared the boundary of your land with claims of your patent application. तो जिस तरह से आपकी बाउंड्री आप सिक्योर करोगे, अच्छे से आप उसको डिज़ाइन करोगे, उतना आपका इन्वेंशन अच्छे से प्रोटेक्ट होगा। तो वो एक है कि यू कैन ड्राफ्ट इन सच ए वे that you get the good security or protection of your invention. So drafting of a claim is one of the legal aspects that you have to consider, and then whatever the claim you draft, under those claim your invention is protected. So one first answer is that to stop duplication from your idea, that you file a patent application and you write a good patent application, and then you draft a good claims, and then you protect your invention and you try to get your invention granted as early as possible. So these are the things are there. Then there is a, can it protect against the duplication of the idea outside India? So as I said, patent is a territorial right. Territorial right means your patent application is your invention, if you file a patent application in India, is only protect in India. If you want to protect in any other country, you have to file a patent application in that particular country. So the answer is that you can stop others, but you have to file a patent application and you have to get grant of your patent application in other country. If you don't do it, then you cannot stop others from practicing in their country. But there is a way that, let's say that your invention you have secured in India and you have got grant in India, and then someone is is importing your goods from India to other countries, then that case you can stop them, that they cannot go and start exporting goods from that. So there are many ways are there that you can stop others in other country, but answer simple is no. You have to get right protection in that particular country. Now there is a main question was that how you can fast track your patent prosecution. So what is patent prosecution is that, as I said, that patent application you file to the patent office, then patent office will examine your patent application, and then the controller examiner sitting over there, they will decide whether your patent is grantable or not, and if they agree, they will grant your patent application a patent, granted patent we call it. So all this process from filing till the grant of your patent is called patent prosecution. So how you can speed up? So there are also ways are there how to speed up. First thing is that patent application once you filed,
then that patent application will get published after 18 months. After 18 months it will get published, then you file a request for examination, and then when you file a request for examination, there is a huge line or huge queue in the patent office. According to that pendency in the patent office, your patent application will get examined. So in normal circumstances, if I compare now, it will take at least 3 to 4 years to get grant of your patent application. But the Indian Patent Office and the government has also given some benefits to the different people. First benefit is what? Let's say that you file a patent application today, it will get published after 18 months. But if you want to get published early and you want to request for examination early, then you have to file for request for early publication. So you have to file a form for requesting to publish your patent application earliest. That means that if you file a patent today and you are requesting today to publish it immediately, then your patent application will get published within 1 month. Your examination would not start until unless your patent application is published. So first rule is that your patent application must be published. तो आप जो है रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन फाइल करके बेनिफिट्स ले सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी पब्लिश्ड हो जाएगी, तो आपकी एग्जामिनेशन भी जल्दी हो सकती है। अगर आप पब्लिकेशन के लिए इंतजार करोगे तो आपकी एग्जामिनेशन डिले होगी। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन। उसके लिए फ़ीस भी देनी पड़ेगी, जैसे कि कोई भी बेनिफिट्स लेता है तो उसके साथ फीस भी होती है। तो नेचुरल पर्सन्स और स्टार्टअप्स को 2500 रुपीज़ देना पड़ता है रिक्वेस्टिंग फॉर अर्ली पब्लिकेशन। आफ्टर दैट there is also way that some category or some applicants, who are according to the patent acts, they have identified and they have given specific benefit to them, they can request for expedited examination. That means that the examination will also be done on the fast track. You can request for expedited examinations. In that case, your patent application will get examined at the earliest. So examination also will be done on the fast track and at the earliest. So one is to file a request for expedited examination. And who can file a request for expedited examination? There are some categories or some applicants patent office has given rights. One is that one of the applicant must be a female. So if one of the applicant is female candidate, female natural person, then they can request for expedited examination. Second is startups. If you are belong to the startup and your company is registered as a startup under the DIPP Government of India scheme, then you can request for expedited examination. So these two are main aspects are there. You request for early examination and you request for early publication. Then your patent application will get examined very quickly, and after that quickly also, once you receive the FER, you have 6 months time period to respond. So we suggest, I suggest that you can reply as early as possible once you received a FER. And once you received FER, then you will get hearing also, and then you submit for hearing also, written submission very quickly. So in that same, if you follow, you file a patent application, you request for early examination, you request for expedited examination, then your patent will get up to the point of grant of a patent application within 1.5 years or within 1 year also. Nowadays there are few examples are there that inventor or applicant got grant within 8 to 9 months.
So this brings to end of this question answer session. So these are the questions answers I have answered, and if you have any other further questions, you can feel free to contact me or contact the Why Not India and Krishna Engineering College. So before I end up this session, I would like to share some information. So first of all, I would like to thank Why Not India for giving this chance to present a webinar and to share my experience and knowledge with all of you and youngsters who are venturing to the new stuff. So I thank you, thank you all for your presence, and I also thank Why Not India Krishna Engineering College for giving this opportunity. And as I said that I am going to share something new. So there was one question that how to find a patent and how to do patent searching. So good news is that my company IP Moment India, along with Sri Ramakrishna Institute of Computer Education and Applied Sciences, this is located at Gujarat. So we are offering, currently is going on, one patent searching course freely, and this patent searching course is available on the uh, course website. I can share with you course website later on the comment section of this Facebook page. Or you can also connect with IP Moment Facebook or my Facebook. You can get the information. So we are offering patent searching course very freely, and this course requires around 8 to 10 hours of your time. So where there are two levels of examinations we are conducting, and we are also providing material for this patent searching, and then there are 6 to 8 live webinars videos are already there. So those webinars we have already conducted in last 1 month. So those are available for viewing purpose, and some PowerPoint presentations also we have shared. So all this course material is available, and this is very freely. There is no chance, and I am glad to share with you that we have already issued or given certificates to 470 plus participants, and 1050 participants have already registered and they are ongoing with this course. So you can also get chance to register for this and get certificate from this course. And these are my contact details. So you can contact me on my WhatsApp, that is 892-000-4700, or you can mail me at paresh.dave@ipmoment.com. So this brings to end of this session, and I am very glad to have you all. And once again, I thank Why Not India and Krishna Engineering College and Deepak and Amrit for giving this opportunity to me to present my whatever knowledge and experience I have with all of you, and wish you all the best for your venture. And I hope you have enjoyed the last 3 days of this venture, and it brings you very fruitful results for the future. Wish you all the best. Thank you. Have a wonderful time ahead.